کراچی نے اپوزیشن جماعتوں کو آزادی کا جشن ساتھ منانے کی دعوت دے دی۔ بیرسٹر مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ باغ ابن قاسم میں آزادی کی مناسبت سے جشن منانے کے ساتھ ساتھ آتش بازی کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ MGM اور جماعت اسلامی سے کہتا ہوں اس شہر کی ترقی و خوشحالی کے لیے ہمارے ساتھ مل کر کام کریں۔ شعیب مختار کی رپورٹ دیکھیے۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے سٹی کونسل کے اراکین کے ہمراہ باغ ابن قاسم میں واکنگ، جاگنگ اور سائیکلنگ ٹریک کا افتتاح کر دیا۔ بیرسٹر مرتضی وہاب نے ڈپٹی میئر کے ہمراہ تعمیر ہونے والے سائیکلنگ ٹریک پر سائیکل بھی چلائی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے میئر کراچی بولے، کل باغ ابن قاسم میں جشن منایا جائے گا۔ جماعت اسلامی اور MQM کو کہتا ہوں پریس کانفرنس چھوڑ کر اس شہر کی ترقی و خوشحالی کے لیے ہمارے ساتھ مل کر کام کریں۔ جماعت اسلامی کے دوستوں کو میسج دینا چاہوں گا، آئیے پاکستان کی خاطر، اس صوبے کی خاطر، اس شہر قائد کی خاطر، میرے شہر کی خاطر، آپ کے شہر کی خاطر، ہم سب کے شہر کی خاطر آئیے ساتھ بیٹھیں اور ایسی پالیسیز بنائیں جس کے تحت اس شہر کی عوام کی خدمت کی جا سکے اور شہر کے معاملات کو بہتر بنایا جا سکے۔ باغ ابن قاسم میں ریسٹورنٹ، کرکٹ اور ہاکی کی سہولیات جلد شہریوں کو مہیا کرنے کا عندیہ دیتے ہوئے میئر کراچی نے کہا کہ یہ پارک 134 ایکڑ رقبے پر محیط ہے۔ ہم نے اس پارک کی بند لائٹوں کو بحال کیا ہے۔ یہاں عوام کو مزید سہولیات فراہم کرنے کے لیے کام کریں گے۔ ہمیں لوگوں کو کراچی کی مثبت تصویر دکھانی ہے۔ جس جگہ پر ہم موجود ہیں یہ 134 ایکڑ پر محیط باغ ابن قاسم ہے۔ بہت سارے لوگ اس پارک کو بنانے کا کریڈٹ لیتے ہیں۔ بالکل تاریکی کا شکار ہو گیا تھا، اس کی لائٹیں بند تھیں اور لوگ یہاں پر نہیں آ پاتے تھے، تو ہم نے پچھلے دنوں یہ فیصلہ کیا کہ ایک بار پھر باغ ابن قاسم کی رونقوں کو بحال کیا جائے۔ بیرسٹر مرتضی وہاب نے بلاول بھٹو کی سربراہی میں کام کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ کہا کہ اس شہر کی روشنیاں بحال کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائیں گے اور عوامی خدمت کے مشن پر ہمیشہ کام کرتے رہیں گے۔ کیمرہ مین فرحان عابد کے ساتھ شعیب مختار، سٹی 21۔ شکایت میں جہاں NGOs ناداروں کی امداد میں مصروف ہیں، وہی ایک NGO نے مریضوں کے لیے بحری ایمبولینس بھی تعینات کر دی ہے۔ مریضوں کو کماڑی سے بابا آئلینڈ لے جانے والی ایمبولینس کے بارے میں جانتے ہیں رابع اشرف کی رپورٹ میں۔ چلتے ہوئے ایمبولینسز آپ نے دیکھی ہی ہوں گی، آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایسی ایمبولینس جو کہ پانی میں چلتی ہے۔ آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ سمندر پر جائیں تو بے فکر ہو جائیں، کیونکہ اب آ گئی ہے ایمبولینس سمندر میں بھی۔ نجی NGO کی جانب سے کماڑی میں مختلف جزائر اور ساحلی مقامات سے مریضوں کو طبی امداد فراہم کرنے کے لیے ایمبولینس مختص کر دی گئی ہے۔ بحری ایمبولینس سمندر میں آئے منزلوں اور ماہی گیروں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ ایمبولینس اسٹاف مریم کا کہنا ہے کہ ایمبولینس میں 2 ڈاکٹر ہر وقت مریضوں کی خدمت کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ ایمبولینس مریضوں کو ایک فون کال پر مفت طبی امداد فراہم کرے گی۔ اس کی 2 ڈاکٹرز ہیں، ڈاکٹر نیہا منکانی اینڈ جہان زبیری، تو وہ کور کرتی ہیں پیشنٹس کو۔ انہوں نے کلینک کھولا ہوا ہے بابا آئلینڈ پہ، وہاں پر بھی وہ کور اپ کرواتی ہیں۔ وہاں سے ہم رجسٹریشن کرواتے ہیں وہاں ہاسپٹل کے ذریعے۔ وہاں پر کھارادر جنرل، لیڈی ریفرنٹ ہماری 2 ہاسپٹل ہیں، وہاں ہم اپنے پیشنٹس کو لے کے جاتے ہیں۔ بالکل یہاں پر کوئی چارجز نہیں ہے، کیونکہ ہم نے رکھی یہ اس لیے کیونکہ یہ کمیونٹی کے لوگ بہت زیادہ افورڈ نہیں کر سکتے اور بہت زیادہ غریب۔ ایمبولینس کی عملے کا کہنا ہے کہ کماڑی کے ساحل پر موجود اگر کسی مریض کی طبیعت زیادہ خراب ہو جائے تو اسے بابا آئلینڈ پر موجود کلینک لے جایا جاتا ہے۔ ساحل پر آئے ہیں تو خوب انجوائے کریں، طبیعت بگڑ بھی جاتی ہے تو ایمبولینس ہے نا۔ کیمرہ مین فرحان احمد کے ساتھ رابع اشرف، سٹی 21۔ سید مراد علی شاہ کی ٹیم میں شامل 7 حکومتی نمائندگان کو الاٹ کردہ دفاتر پسند نہ آئے۔ نمائندگان نے دفاتر میں بیٹھنا بھی گوارا نہ کیا، بلکہ دفاتر کا نظام گھروں سے ہی افسران کے دفاتر میں بیٹھ کر چلایا۔ آزاد نوڑیو کی رپورٹ۔ حکومت کے الاٹ کردہ سرکاری دفاتر مراد علی شاہ کی ٹیم میں شامل 7 حکومتی نمائندگان کے معیار پر پورا نہ اترے۔ نمائندگان نے اپنے محکموں کا نظام چلانے کے لیے دفاتر کا رخ ہی نہیں کیا۔ مراد علی شاہ کی ٹیم میں 5 وزیر، 1 مشیر اور 1 معاون خاص شامل تھے، جن کے الاٹ کردہ سرکاری دفاتر کو ہر وقت تالے لگے دکھائی دیے۔ ان حکومتی نمائندگان نے محکموں کا نظام اپنے گھروں، کیمپ آفس اور افسران کے دفاتر میں بیٹھ کر چلایا۔ صوبائی وزیر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن و پارلیمانی امور مکیش کمار
कुमार चावला को तुगलक हाउस फर्स्ट फ्लोर पर दफातर से अलॉट हुआ, लेकिन उसमें लगा ताला न खोला गया। जबकि सिंध सेक्रेटरीट की बिल्डिंग नंबर 6 के चौथे फ्लोर पर वजीर तालीम सकाफत सियाहत सैयद सरदार अली शाह को अलॉट करता दफातर भी सन्नाटे की नजर रहा, जिन्होंने 2 महकमों का निजाम घर या कैम ऑफिस से चलाया। ओल्ड केडीए बिल्डिंग नंबर 1 के फर्स्ट फ्लोर पर सूबाई वजीर जंगलात नवाब तैमूर तालपुर, सेकंड फ्लोर पर मामून खास एंटी करप्शन बंगल खान मेहर और थर्ड फ्लोर पर सूबाई वजीर अकलियती अमूर ज्ञान चंद इसरानी को दफातर अलॉट हुआ। लेकिन तीनों नुमाइंदगान को दफातर पसंद न आए तो उन्होंने दफातर आना ही गवारा न किया, इसलिए हमेशा दफातर बंद दिखाई दिए। इस तरह ओल्ड केडीए बिल्डिंग नंबर 2 के ग्राउंड फ्लोर पर सूबाई वजीर इंडस्ट्रीज जाम इकरामुल्लाह धैर्यजो और सूबाई मुशीर ज़कात व अशर फयाज अली बट को सरकार ने महकमों का निजाम चलाने के लिए दफातर तो अलॉट किए, लेकिन इन दोनों को भी दफ्तर पसंद न आए और इन दफातर में भी ताले ही लगे रहे। आजाद नोडियो, सिटी 21। सिंध में निगरान सेटअप के क़याम का मामला MQM के रहनुमा जावेद हनीफ और GDA के सेक्रेटरी इत्तलात सरदार अब्दुल रहीम का टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, जिसमें दोनों रहनुमाओं में निगरान वज़ीर आला सिंध के नामों पर मुशावरत हुई है। बात करेंगे शुएब मुख्तार से। शुएब, बताइएगा कोई नाम भी सामने आया है क्या? जी बिल्कुल, सिर्फ निगरान सेटअप के क़याम से मुतालिक जो है मुशावरत तेज कर दी गई है। MQM और GDA रहनुमाओं के दरमियान जो है राब्ता हुआ है। MQM के रहनुमा जावेद हनीफ और GDA के सेक्रेटरी इत्तलात सरदार अब्दुल रहीम का जो है टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। दोनों रहनुमाओं में निगरान वज़ीर आला के नामों पर जो है मुशावरत हुई है। MQM के रहनुमा ने GDA के रहनुमा को आज अपोजिशन लीडर राना अंसार की वज़ीर आला सिंध से होने वाली मुलाकात से जो है आगाह किया है। कल अपोजिशन लीडर राना अंसार की वज़ीर आला सिंध से एक और मुलाकात होगी। इस मुलाकात में जो है निगरां वज़ीर आला के नामों पर जो है बाकायदा तौर पर मुशावरत की जाएगी। राना अंसार जो है कल MQM, GDA और JUI के मुतफ़िका उम्मीदवार का नाम जो है वज़ीर आला सिंध को पेश करेंगी। कल की मुलाकात में जो है अपोजिशन लीडर की जानिब से साबिक कमिश्नर कराची शुएब सिद्दीकी, यूनुस धागा, रहमतुल्लाह जाफरी और फजलुल्लाह कुरैशी का नाम जो है पेश किए जाने का इम्कान है। जी ठीक है शुएब, आप हमें अपडेट कर रहे थे। एक्सपो सेंटर कराची में ट्रेड डेवलपमेंट के तहत पहली आलमी फूड एंड एग्रीकल्चर नुमाइश इख्तिताम पजीर हो गई। नुमाइश में 65 ममालिक के 611 गैर मुल्की वफूद ने शिरकत की, जहाँ 41 करोड़ डॉलर्स के सौदे हुए। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। एक्सपो सेंटर कराची में पहली आलमी फूड एंड एग्रीकल्चर नुमाइश इख्तिताम पजीर हो गई, जहां रखी गई मसनूआत शुरा की तवज्जो का मरकज बनी रही। चेयरमैन टी जुबैर मोतीवाला ने बताया कि नुमाइश में 611 डेलीगेट्स, 217 एग्जिबिटर्स ने शिरकत की, जहां 410 मिलियन डॉलर्स के सौदे हुए। अल्हम्दुलिल्लाह 611 डेलीगेट्स जो है ना, फॉरेन डेलीगेट्स ने यहाँ जो है एग्जिबिट किया। कोई 217 जो है ना हमारे अपने एग्जिबिटर्स थे जिन्होंने एग्जिबिट किया, और इट इज़ सो ओवरवेलमिंग और इतना अच्छा उसके अंदर जो है ना वो उसका रिस्पांस मिला। मैं ये बताते हूँ, अभी जो पहले 380 मिलियन था, अभी जो मुझे फिगर आया है 410 मिलियन डॉलर्स के जो है ना एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए हैं। जुबैर मोतीवाला ने बताया कि इस नुमाइश में 65 ममालिक से खरीदार आए। 2000 B2B मीटिंग्स हुई, जबकि चावल, बीज, कॉर्न, पोल्ट्री, फल, नमक, कन्फेक्शनरी और मसाले जात की डिमांड और एक्सपोर्ट के ऑर्डर मिले। हमने 2000 से ज़्यादा B2B मीटिंग्स की हैं इन दिनों के अंदर, और जो है ना उसके साथ उसके नतीजे में जो कॉन्टेक्ट स्टैब्लिश हुए और जो लोगों ने एक दूसरे को पहचाना और हमारी प्रोडक्ट्स को देखा। 65 मुल्कों से लोग आए। ये हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान में इनकी कभी इनकी रसाई यहाँ तक होती। शुरा ने नुमाइश के इनेकाद को खुश आइंद करार दिया। दखल टिडब जो है इसका ये इनिशिएटिव बहुत अप्रिशिएटेड है और इस जैसी एग्जीबिशंस को रिपीटेडली होना चाहिए। बहुत अच्छा हमें फीडबैक मिला है ओवरऑल, और इंटरनेशनल मार्केट से भी बहुत सारे लोग आए, जैसे यूरोप हो गया, गल्फ कंट्रीज़ हो गई। जो हमारी बेसिक पाकिस्तान जिस पर बेस करता है, एग्रीकल्चर पर बेस करता है, तो उसको मार्केट करने का एक बहुत अच्छा ज़रिया है, और मैं चाहूँगा कि इस तरह के एग्जीबिशन फ्यूचर में भी होते रहने चाहिए। मुंतज़िमीन का कहना था कि नुमाइश के जरिए 3 माह में फूड एंड एग्रीकल्चर के एक्सपोर्ट ऑर्डर्स का हजम $1 अरब तक पहुँच जाएगा। कैमरामैन अजलान छिपा के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। क्लिफ्टन के ग्राउंड में बच्चियों के लिए फ्रेंडली फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। हमना निसार की रिपोर्ट।
जश्न आज़ादी की मुनासिबत से क्लिफ्टन में वाक़े ग्राउंड में बच्चे बच्चियों के लिए अंडर 12 और अंडर 14 फ्रेंडली फुटबॉल टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया। टूर्नामेंट का आगाज़ कौमी तराने के साथ किया गया। टूर्नामेंट के मुंतजिम हसन अशरफ का कहना था कि इवेंट में 70 के करीब बच्चों ने हिस्सा लिया। हम लोगों ने अंडर 12 और अंडर 14 का टूर्नामेंट करवाया है, जिसके अंदर हमारे पास 70 किड्स हैं और जो है हमारे पास 5 टीम्स डिवाइडेड हैं और इसके अंदर हमारे पास कुछ टोटल 10 टीम्स हैं और ये ग्रुप लेवल पे खेला जा रहा है, ग्रुप्स लीग लेवल पे खेला जा रहा है। उसके बाद हमारा सेमीफाइनल होगा और उसके बाद फाइनल में हम लोग विनिंग टीम को अवार्ड्स देंगे। बच्चों ने खेल में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई, किसी ने जीत की खुशी मनाई तो कोई हार कर अफसुर्दा हो गया। मैं अंडर 14 में खेल रहा हूँ। मैं इधर 2 साल से आके प्रैक्टिस कर रहा हूँ और टूर्नामेंट खेलने में मुझे बहुत मज़ा आता है। जैसे मैं 5 दफ़ा जीता हूँ पहले। मैंने 5 दिन के लिए ट्रेन किया। मैं था डिफेंडर और मुझे टूर्नामेंट में मज़ा आया, फिर भी मैं हारा हूँ सैडली। आई एम प्रैक्टिसिंग सिंस 1.5 year। फुटबॉल इज़ माई फेवरेट गेम। वालिदैन का कहना था कि तालीमी सरगर्मियों के साथ साथ इस तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटी भी बहुत ज़रूरी है। मेरे ख़्याल में इस तरह की एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन के साथ साथ जब बच्चों के पास इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं तो दे आर वेरी हेल्दी एंड दिस इज़ वेरी गुड फॉर देयर माइंड, दिस इज़ वेरी गुड फॉर देयर फिज़िकल एक्टिविटीज़। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों को इस तरह की हेल्दी एक्टिविटीज़ में हमें इन्वॉल्व करना चाहिए। एक बेटे की एग्जांपल दूंगी कि उसमें कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन जब से उसने एक माशाल्लाह से ये एकेडमी ज्वाइन की है, इतने अच्छे बच्चे यहाँ पर हैं जो इतनी लैंग्वेजेस इतनी अच्छी हैं, उनकी एक्टिविटीज़ इतनी अच्छी हैं, उतना अच्छे मिंगल करते हैं, यहाँ पे सब तवज्जो देते हैं। टूर्नामेंट के इख्तिताम पर फातेह टीम को अवार्ड से नवाजा गया। रोनाल्डो और मैसी बनने का ख्वाब अपनी आंखों में सजाए ये नन्हे बच्चे मुस्तकबिल में अपनी बेहतरीन कारकर्दगी से पाकिस्तान का नाम रोशन करने के ख्वाहिशमंद हैं। कैमरामैन शकील खान के साथ हमना निसार, सिटी 21। कराची कैंट और सिटी स्टेशन पर जश्न आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। इस हवाले से आदिया नाज की रिपोर्ट। सब्ज हलाली परचम, रंग बिरंगी झंडियां, परचम के हम रंग साजो सामान से सजाया गया है। कराची कैंट और सिटी स्टेशन को बरकी कुमकुमों से दोनों इमारतों को रौनक भी बख्शी गई है। जश्न आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाने के लिए रेलवे मुलाजिमीन बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। एसीओ रेलवे शीमा गनी ने बताया कि हम जश्न आज़ादी की तैयारियां कर रहे हैं। रात के वक्त में हमारी इमारतें अलग ही मंजर पेश करेंगी। इस बार हम 14 अगस्त पर एक तकरीब का इनेकाद करने जा रहे हैं। सुबह 8 बजे परचम कुशाई होगी जिसमें हमारे रेलवे स्कूल के बच्चे शरीक होंगे। अगर आप रात को विजिट करें, शाम को खास तौर पे, तो हमने प्रॉपर लाइटिंग का अरेंजमेंट किया है। उसकी बिल्डिंग को जो है वो बहुत खूबसूरत सजाया है। इसके अलावा जो है वो 14 अगस्त को हमारा स्पेशल प्रोग्राम होता है। फ्लैग होइस्टिंग सेरेमनी होती है आधे घंटे की, एंथम होता है। उसके बाद जो है वो यहाँ पे केक कटिंग सेरेमनी होती है। रेलवे के स्कूल है, TCF का हमारा रेलवे का स्कूल है, वहाँ से हम बच्चे बुलाते हैं। रेलवे ऑफिशियल ने बताया कि इस मर्तबा पहली बार हम अपने कुलियों में केक और मिठाई भी तकसीम करेंगे। ऐसे मौके पर हमें अपने इस तबके को खुसूसी तौर पर याद रखना चाहिए। तो इस दफ़ा कराची डिवीज़न ने एक नया जो है वो एक एडिशन है हमारी इस प्रोग्राम में। वी आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स एंड केक अमंगस्ट कूलीज एट कैंट स्टेशन। हालात इतने ख़राब हैं तो हमारी कोशिश है कि उन लोगों को जो कि रेलवे में बिल्कुल ऐसा तबका है जो कि बेचारा बहुत ही पिसा हुआ है, उसको हम याद रखें। मरकजी तकरीब में DS रेलवे समेत रेलवे के दीगर अफसरान भी शरीक होंगे। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ आदिया नाज, सिटी 21। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।